بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کو آج تک کسی مرد نے نہ دیکھا تھا، شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں جب کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے، جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی۔ میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب اماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دوں۔ یوں میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے، آپ کو پھر بھی نہیں پسند۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آیا تو دیکھا بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے آج میں اپنی کریانے کی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی، اور میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے نمرا جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرا نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، نمرا میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، وہ بیچاری تو اب بستر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھی، میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا ہے اور میری بیوی محو عبادت ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نمرا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرا کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی صدا آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں درد ہے۔ میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے سے امی سے پوچھنے لگا، امی نمرا کیسی ہے؟ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں۔ امی نے نمرا کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی نمرا اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے امی کے اس رویے نے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیا نمرا میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں امی سے اور کچھ پوچھتا تب ہی نمرا امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، تو میں اپنے نوافل سے فراغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھانپ جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا امی کو نمرا پر کس بات کا غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تب بھی نمرا کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرا ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں تلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور نمرا کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرا تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے؟ نمرا ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں بھی۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہیں۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے، پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔
जब मैं अम्मी की तरफ देखती हूँ तो वो मुझे नेकियों का ठाठे मारता समंदर नजर आती हैं, जिसमें जितना चाहे फैज हासिल कर सकती हूँ। निम्रा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था, हालांकि वो मेरी माँ थी। इनकी खिदमत मुझ पर फर्ज थी। खैर, इस दिन के बाद मैं अम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। फिक्र थी तो बस मुझे निम्रा की थी। मैं चाहता था कि निम्रा बस मेरी हो जाए। यूं तो वो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाया करे। मैं इससे ये बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता वो इबादत में मशगूल होती थी। फिर मैं इससे किस मुंह से कहता कि निम्रा तुम मेरे आने पर इबादत छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत बहरहाल मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से सख्त उलझन का शिकार था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी की तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। इन ख्यालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला निम्रा खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देखकर बेहद डर गई थी। मैं बोला मैंने कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे, फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूं। वो बोली दरअसल असद मैंने अभी खाना नहीं खाया। आज मैं चाहती थी कि कुरान पाक खत्म करके ही उठूं। 2 सिपारे रह गए हैं, वो पढ़ते पढ़ते वक्त का पता नहीं चला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया है। मैं बोला निम्रा शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मेरी खिदमत करना और मेरी दिलजोई करना तुम पर फर्ज है। लोग शादी करते हैं ताकि इनकी जिंदगियों में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तुमसे शादी करके फंस ही गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल दरियाफ्त नहीं किया, कुछ ये नहीं कहा कि असद आप कैसे हैं। तुम्हें फिक्र होती है तो बस नमाज कुरान की। अगर तुम्हें इबादतों का इतना ही शौक था तो शादी की ही क्यों? घर के एक कोने में पड़ी इबादतें करती रहती ना चाहते हुए भी गुस्सा और झुंझलाहट में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। निम्रा मेरी बातें सुनकर रोने लगी तो मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हुआ था। वो रोते हुए बोली असद दरअसल मैं इबादतों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब न आ जाएं। निम्रा की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला निम्रा तुमसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो आगे बढ़ी तो इसने मुझे अपने हाथ से एक निशान दिखाया। वो स्याह निशान था। निम्रा बोली ये मेरा निशान एक बुजुर्ग ने देखा था। वो बोला इस लड़की की शादी जिस शख्स से होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। अम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बुजुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली अल्लाह के वास्ते इस मसले का कोई हल निकाल दें, इस मुसीबत का कोई तोड़ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी दलील पर बैठी रहे। तब बुजुर्ग ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो इसको नसीहत करना कि ये 40 रोज तक अपने शोहर से दूर रहे और रात दिन इबादतों में मशगूल रहे। जिस कदर ये इबादत करेगी इतनी जल्दी इस लड़की के सर से नहुसत टलेगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझकर तलाक ही ना दे दें। मैं निम्रा की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला निम्रा मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम बिला वजह मुझसे इतने दिन दूर रही। निम्रा मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई और बोली असद मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे कबल ना किसी ने मुझे देखा है और ना ही मैंने किसी गैर महरम मर्द को आंख उठा कर देखा है। आप ही मेरी कुल कायनात हैं। मैं आपको अपनी नहुसत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप खुदारा ये 40 रोज मुझसे दूर रहें। मैंने निम्रा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए इसकी बात मान ली। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। निम्रा की बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मुझसे दूर रहती है। खैर निम्रा की बात सुनने के बाद अब मैं काफी पुरसुकून हो गया था। अब जब भी मैं इसे इबादत में मशगूल देखता तो मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो ये सब मेरी जिंदगी बचाने के लिए कर रही है। हमारी शादी को अब काफी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि वो निम्रा के बारे में क्या सोचती हैं। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही हूँ।
फिर वो इशारे करके कहने लगी कि निम्रा को तलाक दे दूं। मैं तुझे देख कर ही हैरान रह गया। मैं बोला, अम्मी ये आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नर्स को वापस ले आओ। तब ही निम्रा भी अम्मी के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई। असद, आप यहाँ कब आए? मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा हूँ। निम्रा भी हमारे पास ही आकर बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता, दिन रात सुबह शाम, थोड़ी ही देर बाद वहाँ निम्रा भी आ जाती थी। इस बात का तो यही मतलब था ना कि वो वक्फे वक्फे से अम्मी को चेक करने आती रहती हैं। फिर न जाने अम्मी ये सब कुछ क्यों कह रही थी। मैंने इस दिन के बाद भी 2-3 बार अम्मी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी हर बार मुझसे ये ही मुतालबा करती कि निम्रा को तलाक दे दूं। निम्रा को तलाक देकर मेरी नर्स को मेरे पास ले आओ। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आने लगा था। वो अपने मतलब की खातिर चाहती थी कि इनकी बेटी का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर इनके आराम के लिए नर्स इनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के हक में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन निम्रा ने मेरे सामने ये फरमाइश रख दी थी कि आप नर्स की छुट्टी कर दे, मैं अम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं निम्रा, मैं तुम पर बिलावजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स अम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखा करना। मेरी बात सुनकर निम्रा मुझसे सख्त खफा हो गई थी। वो बोली, मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसी वजह से नर्स को रुखसत नहीं करना चाहते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। निम्रा पे इंतहा खुश हुई थी। फिर इसका अम्मी के साथ लगाव भी तो बहुत था। वो तो अम्मी को नेकियों की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं इससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वो यकीनन मुझसे खफा हो जाती, इसलिए मैंने अम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। दिन गिन गिन कर काट रहा था कि जब 40 दिन पूरे हूँ मैं और मेरी बीवी अपने रिश्ते का आगाज करें। निम्रा भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन कटे नहीं कटते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बार ये 40 दिन बाखैरो अफियत गुजर जाएं, फिर आपके साथ हर बात शेयर किया करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं निम्रा की बात सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगा था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो निम्रा बोली, अम्मी खाना नहीं खा रही, मुंह उन्होंने मजबूती से बंद कर रखा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चले। मैं परेशान हो गया, जल्दी से अम्मी के पास गया तो मैंने इनसे खाना न खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। मैं अम्मी की बात सुनकर सख्त गुस्से में आ गया। मैं बोला, नहीं खाना तो ना खाएं, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया। भला ये भी कोई बात हुई? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतना संगदल कैसे हो सकती है। अब मेरी अम्मी को ही देख लें, वो खुद माजूर थी, मेरी बीवी की मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने निम्रा से कह दिया कि अम्मी को खाना देने की जरूरत नहीं है, इनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को लानत मुलामत किया था कि चलो अम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अब भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि माजूर औरत के साथ जिद करते हो। मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और इनके पास ले गया। अम्मी की आंख से आंसू भी रवां थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर ली थी, मगर मैं निम्रा की नाराजगी से डरता था। इस चीज का मैंने ये हल निकाला था कि मैंने निम्रा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। निम्रा मेरी बात सुनकर बुझ सी गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में शुक्र किया कि इसने हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल से जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि अम्मी की बीमारी के मतलब एक एक बात मुझे बताना है। इसने सर हिला दिया। मैं इसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया था, मैं सीधा अम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर अम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वो बोली, असद साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले नर्स अपनी बात मुकम्मल करती। निम्रा भी वही आ गई थी। वो निम्रा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती हैं? मैं बोला, नहीं नहीं, ये घर में ही होती हैं, ये जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर ये
मुझे सुबह से नजर क्यों नहीं आई? मैंने निम्रा के चेहरे से हवाइयां उड़ते हुए देखा था। वो बोली, दरअसल इतने अरसे से दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूँ ना, आज फारग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने निम्रा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया कि तुम खाना लगाओ, भूख बहुत लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा कि खुल कर बात करें। वो बोली, आपकी वालदा की कंडीशन निहायत क्रिटिकल है। सफाई न होने की वजह से इनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। ये जख्म बहुत तकलीफ दे हैं। इनमें खुजली भी बहुत होती है, मगर आप जानते हैं ना, आपकी वालदा माजूर हैं। फिर खुद सोचें वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। असद साहब, अगर आप अपनी वालदा का ख्याल नहीं रख सकते तो इन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर इन्हें किसी ओल्ड होम में भेज दें। आप अपने लिए जहन्नम की आग तो मत पैदा करें ना। मैं नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी कोताही की माफी मांगता था। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। निम्रा बोली, आप कहाँ गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, वो ही सुनने बाहर गया था। निम्रा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीजा की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो एकदम से पुरसुकून हो गई थी। मैंने इनसे कह दिया कि मैंने बाहर से खाना खा लिया है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रहकर याद आ रही थीं। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब मेरी आंख खटके से खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो निम्रा अलमारी में से एक स्याह बैग निकाल रही थी। बैग निकाल कर इसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे कदमों इसका पीछा करने लगा था। वो छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं सकते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। निम्रा बोली, इस स्याह बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल लिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन टाइम मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शोहर को लगा दी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि इसे मालूम न पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि निम्रा वो बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग इसके हाथ से पकड़ लिया। निम्रा मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। इसे कुछ समझ न आया तो वो इसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहां से वो लड़का आया था, मगर इसकी गिरफ्त रस्सी पर मजबूत न थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और इसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वो कमाल महारत से कूद गया और ये जा वो जा। मैं नीचे उतरकर निम्रा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने निम्रा को 3 तलाकें दे दी। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूं और कहूं कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक भी इसको छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो, क्या वाकई इतनी इबादत गुजार थी या मेरे सामने बनती थी? वो रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब करती? मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वो झूठ ही कहा। दरअसल मैं फहीम से मोहब्बत करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो वालिदैन ने तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। फहीम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो खुद को जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए कभी इबादत का ढोंग रचाया तो कभी नहुसत का, क्योंकि मुझे इल्म है कि हम मुसलमानों को इबादत के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कभी पीरों के आस्थाने के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी हैं, वो फ़कत इसीलिए ना कि वो इस्लाम का लबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं। मैंने भी वो ही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं इसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और इसके वालिदैन को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, निम्रा आज के बाद किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे अयूब पर
پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارا پردہ تمہارے والدین کے سامنے سے ہٹا دے اور ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق سے ملتی رہی ہے تو سوچو تمہارا پرسان حال کون ہوگا۔ نمرہ میری بات سن کر رونے لگی اور میں ہسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔